So hey everyone, this is Maharub and in this video today we are going to talk Ayush, about Ayush's journey. He is currently HD intern at Edfora and he worked as a content writer, and also he is a good Flutter developer, right? In this video we are going to talk about everything about his journey, from where he start and how he manage all his expenses, even his college fees, everything. Yeah, so I'm Arup, I'm Ayush Pawar, and I'm currently in the final year of my undergrad at Triple IT Guwahati, and my branch is computer science. And I love app development. As you said, I am a Flutter developer, and I have been doing it for the past 2 years. I started out with Flutter, and now I do in Flutter and React Native both. So recently I started with React Native also, and I love to build a lot of things. So that's why I have done a lot of hackathons as well in my second and third year. And I think out of the seven I participated in, I won four of them. So, and also as you said, I worked as a content writer. Yeah, so I love writing and sharing my knowledge through my blog on Hashmode. And recently I started with Substack as well. And yeah, and recently I've done some freelance work as well in the last 6 months in Flutter or in backend. And apart from tech, I love to play football, cricket, and watching movies and anime. And I also play for my college football team. या इट्स गुड। मतलब इतना सब करने के बावजूद कॉलेज फुटबॉल टीम में खेलना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग जनरली या तो दो तरीके के बंदे होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कॉलेज एक्टिविटीज़ में सोसाइटी एंड क्लब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनको प्लेसमेंट का मतलब या फिर डेवलपमेंट या फिर कोडिंग जर्नी से दूर हो जाते हैं। लेकिन दोनों को मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात होती है। सो गुड्स एंड सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्कूलिंग एंड योर ग्रेड्स। आई मीन वेयर आर यू फ्रॉम स्टार्टेड, आई मीन कहाँ से तुमने स्टार्ट किया है एंड कहाँ तक अभी, मतलब इतना सारा कुछ जो किया है स्कूल में ग्रेड्स कैसा था एंड व्हाट अबाउट द जेई जर्नी एंड सॉल, कितने सारा एग्ज़ाम वगैरह दिया था, ऐसा कुछ। Yeah, so schooling, I am from Mumbai basically, so I was in state board. So schooling 10th तक तो state board में थी, and 10th में it was decent 94%, so it was a decent score. Then in 11th 12th the JEE race started, right? Everyone was in the JEE race. I was also in that, and at first I failed. So basically I'm a repeater. I repeated JEE. So the next time I got a decent rank and I got into Triple IT Guwahati. And in college also, JEE खत्म हुआ है तो अब कॉलेज में आके पढ़ने का मन तो नहीं करता. So yeah, my grades are pretty low in college. So in first year I think my CGPA was 6.2 something. Then in second year also it was 7. Now it's around 7.3, 7.4 something. So in college my grades are pretty average or below average, you can say. So yeah, that was all about my स्कूलिंग एंड ऑल। yeah, सो या academics. ग्रेट यार। आई मीन आई देखा जाए तो वैसे स्किल के साथ ग्रेड्स एंड स्कोर का कोई उतना ज़्यादा तालमेल है नहीं। आई मीन ऑब्वियसली अगर कंपनी को चाहिए, कंपनी वगैरह भी जो भी आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं उससे आई थिंक उनको इससे कोई फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, एंड हो भी नहीं रहा है। उनको सिर्फ काम निकालना है, तो काम आने से ही मतलब। सो ऑन दैट कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हाउ यू स्टार्टेड ऑल एंड व्हेन, आई मीन द डेवलपमेंट एंड कोडिंग जर्नी। तो डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट करी थी समर ऑफ 2020 में, और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था तभी। फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था समर ऑफ 2020 में, एंड तभी कोविड का टाइम था, राइट? सबको घर भेज दिया था, तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। सो आई हैड टू डू समथिंग कि टाइम निकले। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग, राइट? एंड देयर वाज दिस वन आइडिया इन माई माइंड कि एक आइडिया था कि इसको अगर इसका कुछ बनाना है, ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो टू ब्रिंग दैट आइडिया इनटू रियलिटी आई स्टार्टेड ऐप डेवलपमेंट, कि इसका तो ऐप बनाना है मुझे। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा टाइप होता है, नेटिव, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, and yeah, that's how actually I started doing development. Yeah, it was in the summer 2020.
सो यहीं पे और एक चीज़, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, द 90% स्टूडेंट, अबाउट 80% स्टूडेंट दे हैव स्टार्टेड देयर करियर एज ए वेब डेवलपर, देन दे स्विच टू ऐप डेवलपमेंट. सो बेसिकली ये इसमें कैसा, मतलब कभी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया देन ऐप, या सीधा ऐप से स्टार्ट किया है? मैंने तो सीधा ऐप से स्टार्ट किया था, वेब तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे एक आइडिया था मेरे दिमाग में एंड वो उसका इम्प्लीमेंट बन करने सकता का. था। ओह सही है. मतलब उसका वेबसाइट बनाने का सेंस नहीं था, क्योंकि उसमें जीपीएस लग रहा था एंड तो मैंने सोचा कि इसका तो ऐप ही बनाना है, तो ऐप डेवलप मतलब पहले से पूरा तैयारी था कि मतलब मेरे को यही चाहिए, तो देन इसके लिए यही चाहिए, ये ऐप वेब का कोई सवाल ही नहीं बनता. सो ऐप करना है तो ऐप डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करें. एंड फॉर दैट यहीं पे मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या पेड कोर्स यहाँ पे ज़्यादा मायने रखते हैं आपके हिसाब से? कौन सा पेड कोर्स, या फिर जो भी यूट्यूब कोर्स अभी अवेलेबल है वो सब भी हम चूज कर सकते हैं? एंड कौन सा, मतलब इतना भी ज़्यादा हाइप नहीं बनाना चाहिए पेड कोर्स का, या फिर एक्चुअली पेड कोर्स में कुछ है? तो दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है ना, पेड वर्सेस फ्री कोर्स का. मतलब बहुत लोग पेड के साइड होते हैं, कुछ लोग. तो पेड कोर्सेज के अपने एडवांटेज है. पहला तो ये कि उसमें स्ट्रक्चर्ड होता है कंटेंट, एंड उसमें ये पक्का होता है कि जो मिलेगा पूरा मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ जाके कुछ ढूंढ लो, वहाँ जाके ढूंढ लो, एंड सब एक साथ स्ट्रक्चर्ड मिलेगा. एंड दूसरा एक होता है कि एक मोटिवेशन होता है कि मतलब मैंने पैसे दिए तो मुझे खत्म करना है. या तो ये एक मोटिवेशन होता है पेड कंटेंट का. अब बात रही यूट्यूब की, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मेहनत आ जाती है कि अब मुझे पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को ढूंढना भी है कि मैं कहाँ से पढूं, क्योंकि फ्री का तो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं मिल जाता बना बनाया. तो उसमें एक लेयर एक्स्ट्रा मेहनत है. अब जब कोविड का टाइम था ना, तब यूडेमी पे बहुत सस्ते में मिलते थे कोर्स, अगर याद होगा तो. हाँ, मतलब या 400 का मिल रहा है, 450 का इवन अभी भी मिल रहा है. मिल रहा है. हाँ, या क्योंकि मैंने 2-3 साल से यूडेमी देखा ही नहीं, तो पता नहीं मुझे. या बट जब जब मिलता था, क्योंकि तब फ्लटर का जो था ना इतना रिसोर्स था नहीं, क्योंकि 2018 में फ्लटर आया है एंड 2020 में मैंने शुरू किया था, राइट. तो फ्लटर भी डेवलपमेंट स्टेज में था एंड फ्री रिसोर्सेज भी उतने थे नहीं उसके यूट्यूब पे. तो मैंने तो यूडेमी से कोर्स ले लिया, 499 का ले लिया था. एंजेला यू का कोर्स था वो. या इवन मोस्ट प्रॉब्लम मैंने भी जितना रिकमेंड किया वही कोर्स किया है. हाँ, तो वो कोर्स में सब कुछ था. तो अगर एकदम बिगनर है, कोई फर्स्ट सेकंड ईयर में है एंड उसमें वो नहीं है कि मैं ढूंढ लूंगा फ्री रिसोर्स, तो यू कैन पे 499. मतलब 499 जो बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड ईयर वाले कि हम स्टॉक्स में लगाएंगे या लगाएंगे, उससे अच्छा है कि वो 499 का एक कोर्स कर लो और उसमें सीख लो अच्छे से. एंड उसके बाद जो आपको रिटर्न्स मिलेगा ना आपके इंटर्नशिप से, फ्रीलांस से, हैकाथॉन के पैसे से, वो बहुत ज़्यादा होगा. मतलब 499 से आप 100 टाइम्स ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आपने 499 से कुछ सीखा था. बट अगर आप में वो है कि मैं ढूंढ लूंगा फ्री का रिसोर्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन से कर लूंगा मैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से भी लोग सीखते हैं, राइट. बट जो एकदम बिगनर होता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा ट्रिकी होता है. वो बोर हो जाएगा, बोले इतना सारा कौन पढ़ते बैठेगा, उसको वीडियो कॉन्टेंट चाहिए होता है, राइट. तो वो यूट्यूब पे कर सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत रिसोर्सेज है यूट्यूब पे, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत लोग कंटेंट बना रहे थे, राइट, यूट्यूब पे सारे टेक स्टैक में. सो या मतलब आखिर में पर्सन टू पर्सन होता है कि अगर वो मेहनत नहीं करनी ढूंढने का यहाँ वहाँ, तो ले लो एक कोर्स 499 में अभी भी मिल रहा है. एंड अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ढूंढ लो यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पढ़ लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो. या एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी टॉपिक है. मैंने जितने भी पॉडकास्ट में ये कॉमन क्वेश्चन था. एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इवन इफ़ यू ऑप्टिमाइज योर टाइम, देन तुम 499 इट्स नॉट ए बिग. इवन 2 पिज़्ज़ा, इसमें पिज़्ज़ा इससे ज़्यादा का आता है, तो उसमें भी ले सकते हो. एंड दूसरी बात यह है कि जो अनपेड कोर्स है, यूट्यूब का जो कोर्स है, वो भी अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया ना ये टेक का, तो वो बहुत ज़्यादा हर कोई ऑप्टिमाइजली बना रहा है. मतलब जो बहुत अच्छे वाले यूट्यूब होते हैं ना, जो फ्री रिसोर्स होते हैं, उसमें कैसा होता है, वो 5 घंटे का कोर्स दिखा देगा, बट उसके एंड में बोलेगा कि मेरा एक पेड कोर्स है जहाँ पे मैं पूरा सिखा. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली अभी ऐसा आ चुका है. लेकिन अगर पीछे जो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अगर फॉर एग्जांपल अगर सवाल किया जाए, आपने अपना प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सबसे पहले तो एसएससी बोर्ड में ना 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लेना पड़ता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, महाराष्ट्र बोर्ड में. तो वहाँ पे हम लोग को सी सिखाया था सॉफ्टवेयर में. तो बोल सकते हैं कि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन कोडिंग से वही था, सी मैंने किया था. बट उसमें क्या था, ऊप्स सिखाया था, बेसिक ऊप्स.
एंड फॉर लूप, वाइल लूप, एकदम बेसिक सी था वो, ठीक है। फिर कॉलेज में आने के बाद ही सॉरी वो तो C++ था, याद नहीं मुझे, 11th-12th में C++ था। एंड कॉलेज में आने के बाद फिर DSA वगैरह जो करते हैं ना प्लेसमेंट के लिए, वो तो मैंने शायद कब शुरू की थी, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच में शुरू करी थी। या मेरा डेवलपमेंट था पूरा, मतलब मैं फ्लटर डेव था और एक बैकएंड का बंदा होता था, एक फ्रंट एंड का बंदा होता था, 2 बैकएंड के होते थे, एक फ्रंट एंड का होता था, एक डिजाइनर होता था। तो हमारी एक टीम थी, वही पार्ट लेते थे हम। मतलब पहले से ही आप लोगों का मतलब एक वो फ्रेंड्स आके नॉट फॉर द एंजॉय करने के लिए नहीं, मतलब सीखने के लिए भी एक पूरा ग्रुप था। हाँ वो सब साथ में करते थे हम, इंजॉय भी साथ में हो जाता था, वो हैकाथॉन भी साथ में कर रहे हैं, या इंटर्नशिप भी इट्स हो गुड। रही है। इवन मैंने आपको जब पहले ही पूछा था कि मतलब क्या आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा कुछ था कि मतलब आपने एक चीज़ कॉमन बताया कि जो भी करते थे साथ में फ्रेंड्स के साथ करते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है किसी भी स्पेशली ट्रिपल आई टी गुवाहाटी अगर बोल सकते हैं तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम ट्रिपल आई टी तो है लेकिन एकदम जो प्रीमियम क्वालिटी का कॉलेज है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो उसके मामले में बेसिकली क्या होता है देखा जाता है ऐसा कि एक एक बच्चा कोई बच्चा निकल जाता है कि पढ़ने में अच्छा निकल जाए, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली का प्लेसमेंट भी सबका प्लेसमेंट लगना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब काफ़ी लोगों को। इवन आपको जो पहले इंटर्नशिप मिला था तो वो कहाँ से मिला था? ओके, सो फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी मेरी, वो तो मैंने स्टार्ट करी थी अपनी समर ऑफ 2021 में थी मेरी वो, एंड वो सेकेंड ईयर एंड था मेरा। एंड वो मैंने ढूंढी थी इंटर्नशाला से, तो वो फ्लटर डेवलपमेंट की इंटर्नशिप थी। एंड तभी भी लॉकडाउन था, सब घर में थे, राइट। तो एंड मैंने फ्लटर अच्छा खासा कर लिया था, मैंने समर 2020 का में गई शुरू किया था। और तभी वो एक साल में ऐसा ऑन ऑफ था कि मतलब 4 महीना फ्लटर कर लिया, फिर कुछ नहीं किया, फिर मैं DSA की तरफ जा रहा हूँ, कह रहे DSA भी करना है, सब DSA कर रहे हैं, फिर मैं वापस फ्लटर कर रहा हूँ। मतलब वो एक सिचुएशन होता है, मतलब हर किसी का लाइफ में ये आता है कि कौन सा संभालें, DSA करें या फिर कंपनी फोड़ना है या फिर डेवलपमेंट में पूरा घुस जाएं। क्योंकि डेवलपमेंट मोस्ट प्रोबेबली इवन आई एम ऑल्सो कि डेवलपमेंट ऐसा ये है कि आप अगर स्टार्ट करोगे ना, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसमें घुसे रहते हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट के लिए भी DSA करना रहता है। सो वो एक है। तो प्लेसमेंट का DSA तो हाँ वो मैंने सोचा जब मैं गया DSA की तरफ फर्स्ट सेकंड ईयर के बीच में, बट मैंने सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैं 4th ईयर तक सब भूल जाऊंगा। तो मैंने बोला इसको छोड़ो, वापस डेवलपमेंट करते हैं, DSA की तरफ 3rd ईयर में आ जाएंगे वापस। तो मैंने वही फ्लटर फिर से किया, एंड देन मैंने समर इंटर्नशिप कर ली अपनी इंटर्नशाला से, एप्लोर करके एक कंपनी थी, 3 महीने वहाँ पे किया बस, या इंटर्नशाला से मिली थी। इट वॉज पेड? हाँ पेड थी वो तो। या और यहीं पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत कोई अभी भी मतलब अभी भी इस सिचुएशन में भी या इस ज़माने में भी बहुत कोई अनपेड जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोलना चाहो? अनपेड इंटर्नशिप तो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, मतलब 5,000 भी मिले ना तो ठीक है, बट अनपेड मतलब 5,000 बेटर है, अनपेड से बहुत ज़्यादा बेटर है। या ऑब्वियस 5,000 इज 3,000 तो दे सकते हैं लोग, मतलब पॉकेट मनी एटलीस्ट। हाँ मतलब दे देते हैं लोग, मतलब जिनको नहीं देना ना उनके पास मत जाओ, कि अनपेड इंटर्नशिप का कुछ मतलब नहीं है। क्या देंगे लोग? सर्टिफिकेट देंगे, उसका कुछ मतलब है नहीं सर्टिफिकेट का, ठीक है। मतलब वो तो मुझे कोर्स करके भी मिल रहा है, ऐसे कहीं से मैं कोर्स डाउनलोड कर लूंगा और सर्टिफिकेट तो फ्री में बन जाता है, उसमें क्या है मतलब। तो अनपेड इंटर्नशिप तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, मतलब थोड़ा रुक जाओ, मतलब थोड़ा स्किल डेवलप कर लो। हाँ मतलब मैं ना इंटर्नशाला पे मार्च से ढूंढ रहा था इंटर्नशिप, और मुझे मई में लगी थी। तो 2 महीने तक मुझे मतलब पहले तो 6-7 कंपनीज ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में कुछ था ही नहीं, वही 2-3 प्रोजेक्ट थे मेरे और कुछ नहीं था, और मेरे ग्रेड्स भी कम। तो कुछ तो किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर एक जन ने रिप्लाई किया, वो अनपेड दे रहा था, तो मैंने डिसाइडेड था कि अनपेड तो नहीं करनी है, नहीं मिली तो भी चलेगा बट अनपेड तो नहीं करनी है। फिर उसके बाद जो 2nd-3rd कंपनी थी उन्होंने पेड इंटर्नशिप दे दी, तो मैंने ली। क्योंकि आप अनपेड क्योंकि पेड मतलब एक वैल्यू होता है ना, आपके टाइम की भी एक वैल्यू है, भले ही आप बिगनर हो बट कुछ तो वैल्यू है आपके टाइम की। आप मतलब डोंट गिव योर टाइम अवे जस्ट लाइक फ्रीली, बिकॉज देन ओनली यू विल वैल्यू योर टाइम। अगर आप फ्री में टाइम दे रहे हो ऐसा, तो फिर आप खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, तो वो क्यों करेगा? सिंपल। या इट्स गुड। आई मीन यहाँ पे और एक चीज़ बड़ी बात आ जाती है, बात सिर्फ पैसे की नहीं, जब बात अनपेड होता है ना, देन वो लोग उतना लाइटली ले लेते हैं, मतलब उतना कुछ सीखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे वही ज़्यादा हो जाता है। बहुत कोई
वो लेते तो ऐसे हैं, मतलब मैंने कुछ मेरे भी कुछ फ्रेंड्स जो भी सेकंड ईयर में किए थे, उन्होंने ये बोला कि मुझे सीखना है, अगर सीखना है इससे मुझे कुछ ना भी दे तो ठीक है। लेकिन मैं वहीं पे एक सवाल था कि अगर आपको सीखना ही है, लेकिन उन्होंने जो बताया ना कि हम लोग तो घुस रहे हैं सिखाने के नाम पे, वो लोग घुसा रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो लोग सिखा भी नहीं रहे हैं सही से, वो बस काम करा रहे हो, सिखा थोड़ी रहे हो। वही वही। सो सीखने के लिए फ्री में सीखना है तो आप प्रोजेक्ट ही बना लो खुद के, हैकाथॉन कर लो, उसमें आप फ्री में बहुत सीख जाते हो। या मतलब ऐसा किसी के लिए काम फ्री में नहीं करना कभी, मतलब ऑब्वियसली। सो एज मतलब आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये कि ऑफ कैंपस से मिला था, देन कॉलेज बाद में आपने 2-3 ऑलरेडी किया था कि इंटर्नशिप ऑलरेडी किए हैं, लेकिन उसमें से सारा कुछ ऑफ कैंपस था या फिर कुछ ऑन कैंपस भी मिला? ऑन कैंपस में इंटर्नशिप के लिए आता है? हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे आई थी इंटर्नशिप के लिए ऑन कैंपस, एक ही आई थी जब हमारे टाइम पे, तो अब इस साल वाले बैच के लिए शायद आई है ठीक ठाक, बट हमारे टाइम पे जो समर इंटर्नशिप देते हैं 3rd और 4th ईयर के बीच में, तब एक कंपनी आई थी एंड उसमें मेरा हुआ था। तो 3rd एंड 4th ईयर के बीच वाले इंटर्नशिप में भी समर में भी मैंने इंटर्नशिप की थी, दैट वाज ऑन कैंपस। एंड उसके बाद मैंने और 3 मंथ्स इंटर्नशिप करी, दैट वाज ऑफ कैंपस, बोनीटो करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने करी। एंड अभी मैं करंटली कर रहा हूँ जहाँ पे वहाँ हेडफोरा में, वहाँ पे मेरे पास ऑन कैंपस ही थी ये भी, एंड फुल टाइम ऑफर भी यही का है मेरे पास। तो मतलब पीपीओ मिल चुका है? हाँ हाँ, पीपीओ मिल चुका है, तो ये फाइनल इंटर्नशिप भी मेरी यहीं पे चल रही है। तो यार 4 इंटर्नशिप्स, 2 ऑन कैंपस 2 ऑफ कैंपस। या इट्स गुड। मतलब इतना भी, मतलब जितने जो नए IIT ट्रिपल IIT में है, तो ट्रिपल IIT गुवाहाटी का फिर भी सही है। मतलब मैंने और एक चीज़ सुना है ट्रिपल IIT का, जितना भी स्पेशलाइज्ड ट्रिपल IIT, इवन आप जानते होंगे शायद प्रियांश अग्रवाल वगैरह को, कि गूगल किडस्टार जो वान होते हैं। सो ट्रिपल IIT का एक चीज़ मैंने सुना है कि उसका कोडिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, स्पेशली द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो लोग काफ़ी सही रहता है। मतलब एट कंपेयर टू जो भी GFTI होते हैं या फिर NIT जो लोअर NIT होते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में। सो वहाँ पे कैसा था? मतलब जैसे कि ट्रिपल IIT दिल्ली में कुछ जो होते हैं, मतलब उनको अब आप ऐसा भी था कि कोर्स से या फिर जो भी कोड फोर्सेस वगैरह में 1700 ऐसा कुछ रेटिंग दे देते हैं, इतने अगर आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है क्लब वगैरह में, ऐसा कुछ वहाँ पे कोडिंग कल्चर का? जब मतलब हम जब फर्स्ट ईयर में थे तब तो इतना अच्छे से सेटअप नहीं था, मतलब सीपी वगैरह का कल्चर, बिकॉज ज़्यादा पुराना भी नहीं है ना ट्रिपल IIT गुवाहाटी, तो तभी नया बन रहा था स्टूडेंट कम्युनिटी वगैरह। एंड बेसिकली हमारा जो बैच है और हमारा जो जस्ट सीनियर बैच है, उन्होंने ये पूरा कल्चर स्ट्रॉन्ग किया कॉलेज में कोडिंग वगैरह का, क्योंकि हम जब सेकेंड ईयर में थे तभी हमारे यहाँ पे GDSC भी आई, गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब आया, फिर बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर्स बने हमारे बैच से, जूनियर बैच से, सीनियर बैच से। एंड सीपी वाला कल्चर भी हम जब सेकेंड ईयर में थे तभी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, डेवलपमेंट कल्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज GDSC आया। तो अभी तो अच्छा खासा हो गया वहाँ पे कल्चर कोडिंग वगैरह का लास्ट 2-3 साल में। एंड सीपी वाले भी बहुत अच्छे हैं हमारे कॉलेज में, जो सिर्फ डेडिकेटेड सीपी करते हैं। ICPC नेशनल्स तक भी गए, हमारे बैच की गई एक टीम थी। एंड सो या कल्चर तो अच्छा हो जाता है, बस वो रहता है ना कि अगर अच्छे करेंगे तो किसी भी कॉलेज में हो जाएगा कल्चर अच्छा, वो एक रहता है ग्रुप ऑफ कम्युनिटी टाइप है, आप अच्छा करोगे तो हो जाएगा, कॉलेज का कुछ बैरियर लगता नहीं मुझे। या इट्स गुड। इवन आपने चूज किया था फ्लटर, राइट? आपने फ्लटर ही क्यों चूज किया? मतलब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर कुछ में फ्लटर, जैसे कि हम सब में जानते हैं फ्लटर इट्स कॉमन, मतलब आपको एक चीज़ सीखो बहुत सब कुछ हो जाता है। तो आपको नहीं लगा कि दूसरा आपको अभी भी लगता है कि फ्लटर ही बेस्ट है या फिर दूसरा का भी उतना ही अहमियत है? तो मैं जब ढूंढ रहा था कि ऐप किस में बनाऊँ, तब मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं आता था मुझे, बस C++ में फॉर लूप लिखना आता था, वाइल लूप लिखना आता था, एकदम बेसिक आता था, डेटा स्ट्रक्चर्स पता थे। तो और फ्लटर का एडवर्टाइज मार्केटिंग ऐसा था कि बहुत ईजी है, बिगनर बहुत इजीली सीख सकते हैं, अभी भी ऐसा ही बहुत इजीली सीख सकते हो फ्लटर, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको जैसे रिएक्ट नेटिव में पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए अच्छे से,
रिएक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो भी अच्छा है, एंड देन यू कैन डू रिएक्ट नेटिव रियली गुड, राइट। फ्लटर का ऐसा नहीं था, फ्लटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डार्ट, एंड डार्ट इज सिमिलर टू C++, दिस इज व्हाट आई फील, सिंटैक्स वाइज वगैरह वगैरह। तो मुझे सूट हो गया वो बेसिकली। एंड एंड्रॉइड जो जावा जो होता है अपना नेटिव होता है, जावा या कॉटलिन, वो तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, तो मैंने बोला चलो फ्लटर में करते हैं, उसके बाद नेटिव में भी चले जाएंगे, पहले एक तो ढंग से सीख ले। तो इसलिए मैंने फ्लटर से शुरू किया, एंड मुझे वो एंजेला का कोर्स मिल गया ना, मुझे मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल गया, और मतलब एक बेट लिया मैंने फ्लटर पे, बिकॉज तभी इतना नहीं था फ्लटर जितना अभी है, अभी तो बहुत बूम हो गया। मतलब ऐसा था कि जो हाथ में मिला एंड फ्लटर ही मिला, ऐसा कुछ मतलब मेरे को उतना ज़्यादा कि ये नहीं लेना है वो लेना है, या वो नहीं लेना है ये लेना है, ऐसा कुछ नहीं था, जो मिला। इतना डायलेमा में था ही नहीं मैं, बिकॉज रिएक्ट नेटिव तो मैंने पहले हटा दिया था। मैंने बोला कि नहीं भाई मैं जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहा बैठ के, टाइपस्क्रिप्ट नहीं सीख रहा बैठ के, रिएक्ट नेटिव तो मैंने हटा दिया, इसको हटाओ। फिर बचा नेटिव और फ्लटर। तो नेटिव का वही था कि मुझे लगा कि नहीं यह थोड़ा हार्ड है, इतना लर्निंग कर्व मुझे नहीं करना, कुछ नया, ये फ्लटर नया आया था, एंड मैंने बोला ना जैसे कि मैंने बेट ले लिया फ्लटर पे कि हो सकता है, क्योंकि फ्लटर पे भी नया था तो ज़्यादा लोग कर नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको मास्टर कर लूँ अभी तो आगे एज मिल जाएगा, या ऑब्वियसली मुझे एज मिलेगा बाकियों से, क्योंकि 2-3 साल बाद तो सब लोग कर रहे हो गए। तो ये भी सोचा था मैं कि चलो कुछ नया है, बैठ लेते, अगर बहुत अच्छा हो गया फ्लटर तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, और फ्लटर एज ए लैंग्वेज एज ए फ्रेमवर्क अच्छा नहीं रहा तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यस, बस यही था फ्लटर कहने का पीछे का रीजन। या गुड, आई मीन मतलब ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेफर करते हैं, जैसे कि आपने थोड़ा डिफरेंस बताया, लेकिन बाकी का भी सही है। फ्लटर इसलिए चूज करते हैं मैंने, जैसे कि पहले आपको बता दिया कि ये एक करो और सब कुछ हो जाता है, दूसरा कोई भी रिएक्ट नेटिव वगैरह अगर सीख लो, एंड जावा स्पेशली बताया, जावा कोडलेन का। मैंने जितने लोगों से बात किया या फिर मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, तो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट में है, ऐप डेवलपमेंट में, वो लोग जावा को अवॉइड करते हैं, जावा एंड कोडलेन को, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब वैसे तो कोई चीज़ उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि सीखा नहीं जाए, लेकिन एज कम्पेयर टू इसके तुलना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो गुड। फ्लटर में भी आप अगर कुछ एडवांस करने चाहोगे जिसका सपोर्ट फ्लटर की लाइब्रेरीज नहीं प्रोवाइड करती, तब आपको एंड में नेटिव का कोड लिखना ही पड़ेगा, आपको खुद का एक मॉड्यूल बनाना ही पड़ेगा। बट उसके लिए आपको फ्लटर में बहुत, मतलब आप पहले फ्लटर में बहुत अच्छे हो जाओगे तब आप वो करोगे। तो एंड में आपको जाना ही है, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप नेटिव से दूर नहीं भाग सकते, आपको नेटिव सीखना ही पड़ेगा कभी ना कभी, एंड मैं भी कुछ टाइम में सीख ही लूँगा। गुड गुड गुड। जो भी मतलब बिगनर सोच रहा है कि नेटिव नहीं करना पड़ेगा, एमटेक में करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। या वो तो मतलब एक टेक्नोलॉजी का एक चीज़ खासियत ये है कि, खासियत बोल सकते हो या फिर कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हो कि ये आपको कोई भी टेक्नोलॉजी पूरे ज़िंदगी भर नहीं जॉब दिलाएगा, हमेशा अपडेट होता रहना पड़ेगा। इवन आप कंपनी में, आप जो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एक कोर्स के या फिर एक स्किल के बेस में ज्वाइन हो रहे हो सकता है वो ज्वाइन होने के बाद आपको दूसरा चीज़ सीखना पड़े। ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अर्ली इंटर्नशिप इन योर कॉलेज एंड योर करियर। सो बेनिफिट्स ऑफ, मतलब मेरे हिसाब से तो 2 से 3 बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो तुम्हारे इसमें क्या बोलते हैं ना कि तुम्हें पहले से पता चल, मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। अगर आप इंटर्नशिप करते हो, भले ही सर्विस बेस्ड में हो या किसी एजेंसी में हो, एटलीस्ट तुम्हें पता चलता है कि कैसे काम होता है, कि मतलब पहले मैनेजर को मिलता है, फिर मैनेजर तुम्हें देता है, फिर तुम ये जो भी एक्सेट्रा तुम्हें पता चल जाता है, इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इसके साथ साथ जो स्किल तुम्हारी डेवलप पर्सनल प्रोजेक्ट या हैकाथॉन से होती है ना, जिस लेवल का कोड तुम वहाँ पे लिखते हो एंड जिस लेवल का कोड तुम किसी कंपनी के लिए लिख रहे हो, उसमें बहुत फर्क होता है। बिकॉज पर्सनल प्रोजेक्ट और हैकाथॉन में कोई वो नहीं है कि मतलब खराब कोड लिख दिया तो क्या ही होगा, कोड फट गया तो क्या ही होगा। बट आप जब कंपनी में लिखते हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, क्लीन कोड होता है। आप मतलब कोई देख रहा है आपका कोड तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, इसको आता है, लिखा है, सही लिखा है। आप अकाउंटेबल होते हो ना किसी चीज़ के लिए, कुछ पड़ गया तो आप पे सब ब्लेम आएगा, एंड तो मैनेजर वगैरह बोलते हैं। तो जब आप इंटर्नशिप के पहले का जो आपका स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल होता है एंड आपके फर्स्ट इंटर्नशिप के बाद का जो स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। एंड सेकेंड ईयर में अगर आप कर लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस और स्किल लेवल होगा अपने होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है या मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है। सेकंड होता है फाइनेंसेस,
कि आप कॉलेज में अपने खुद के फाइनेंसेस अब हैंडल कर रहे हो, ठीक है। क्यों पहले इंटर्नशिप में इतना नहीं मिलता, बट इतना मिल जाता है कि जिससे आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा, आपको घर से मांगना नहीं पड़ेगा। तो जब आप जितना जल्दी आप मतलब वो फीलिंग होती है ना, जब वो फर्स्ट फीलिंग आती है ना आपके पास, तो आप बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि घर से मांगना तो नहीं पड़ रहा है। यस, पहले तो बहुत कम मिलेगा, बट बाद में मतलब इतना मिल जाएगा कि मतलब आप कॉलेज की फीस भी खुद भर सकते हो, आपको इतना मिल जाएगा बाद में। तो वो एक एडवांटेज होता है कि फाइनेंस आप खुद के पैसे आप मैनेज कर पा रहे हो कॉलेज से, ठीक है। एंड थर्ड होता है कि आपके रेज्यूमे में ऑब्वियसली इंटर्नशिप, क्योंकि जब अभी इसमें दो टाइप का होता है, एक तो आपके कंपनी में या तो आपके कॉलेज में या तो कंपनी से इंटर्नशिप देने आ रही है बहुत ज़्यादा, तो या तो आपके कॉलेज में नहीं आती, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में नहीं आती तो आपको ऑफ कैंपस ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर आप थर्ड ईयर में कोई बड़ी कंपनी में समर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, अमेजॉन, गूगल, बैंक, जो भी है, एंड आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी एक इंटर्नशिप रहेगी, देन थोड़ा बेनिफिट हो सकता है ना आपका। सो दैट इज वन प्लस पॉइंट। एंड अगर आप ऑन कैंपस में देख रहे हो तो ऑन कैंपस में इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑन कैंपस में मार्क्स, डीएसए एंड कोर में कितना स्ट्रेंथ है वो भी देखते हैं रेज्यूमे राउंड में, अलॉन्ग विद द इंटर्नशिप, राइट। तो ऑन कैंपस में पड़ता है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बट ऑफ कैंपस वाले जो ट्राई करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एक अर्ली इंटर्नशिप का आपके करियर में। तो आपको कहना ये है कि जो ऑफ कैंपस होता है वो बेसिकली ओनली फॉर द प्रोजेक्ट बेस में आपको मिल जाता है, राइट? प्रोजेक्ट के बेसिक में उतना ज़्यादा डीएसए वगैरह। रेज्यूमे राउंड, बस रेज्यूमे फिल्टरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। रेज्यूमे तो सबसे पहले फिल्टर होता है ना, हाँ डीएसए वगैरह के पहले। तो उसमें आपके अगर है कि इंटर्नशिप इसने ऑलरेडी कर रखी है थर्ड ईयर में, उसके पहले इसकी इंटर्नशिप है, तो बढ़िया है, मतलब एज मिल जाता है थोड़ा, ऑब्वियसली एज मिल जाता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं कि सेकंड ईयर में ही करनी है। वो तो हमारा टाइम कोविड था, घर पे कुछ करने के लिए था नहीं, तब बहुत लोगों ने की थी। अब तो शायद सबके ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो रहे हैं, राइट, तो शायद टाइम भी नहीं मिलेगा लोगों को करने का सेकंड ईयर में कुछ, बिकॉज सेकंड थर्ड ईयर में सिलेबस बहुत हेक्टिक होता है करिकुलम का। तो वही है, मतलब अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया है, बट नहीं किया तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम पीछे छूट गए रेस। अगर आपको रिकमेंड करना हो कि कॉलेज सीजीपीए के पीछे ज़्यादा भागो या फिर अपना स्किल्स में काम करो, डेवलपमेंट हो या फिर सीपी हो, तो कौन सा में ज़्यादा प्रेफर करोगे? ये भी वही कॉलेज पे आ जाता है, मतलब कंपनी से अगर कैंपस पे आ रही है तुम्हारे, अगर कैंपस पे आ रही है तो अपनी सीजीपीए 8 रखो, एटलीस्ट रखो। फिर वो 8.01 भी रहेगी ना तो भी फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, बट एटलीस्ट 8 रखो। वो लोग तो ऐसे रेंज दे देते हैं, फना मान लो माइक्रोसॉफ्ट आया, उन्होंने बता दिया 8 से 9 वाले ही बंदे बैठ सकते हैं, जो फर्स्ट टेस्ट ये जो होता है। यस, फिल्टर उधर ही आप हट जाओगे, आप कितना ही आपका अच्छा हो डीएसए, लेकिन आपकी सीजीपीए 8 के नीचे तो डजंट मैटर, आप हट जाओगे। तो मतलब हर एक चीज़ का अपना अपना जगह है, मतलब हर एक चीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेंटेन करके चलो। हाँ, अगर आप ऑन कैंपस में आपका ध्यान है तो। अगर ऑफ कैंपस के लिए आप जा रहे हो तो सीजीपीए नहीं, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं जब सेकंड थर्ड ईयर में या अभी भी जब ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा था पास्ट में, तब मेरे रेज्यूमे में सीजीपीए मेरी 7 थी, फिर भी मुझे 2 फुल टाइम ऑफर मिले ऑफ कैंपस, एंड एक तो ऑन कैंपस फुल टाइम ऑफर है अभी मेरे पास। तो ऑफ कैंपस में डजंट मैटर सीजीपीए, उसमें बस स्किल्स देखते हैं एंड आपका प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वगैरह देखते हैं। बट ऑन कैंपस में यस, सीजीपीए रखो, एटलीस्ट 8 रखो। मैं तो नहीं रख पाया, बट रखो। या ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल गया मतलब सबको मिल जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके रखा ज़रूरी है। चलो एक चीज़ तो और एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि इंटर्नशिप के बारे में, कॉलेज में आ गया तो ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑफ कैंपस, सो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप रिकमेंडेड करना चाहोगे कि यार एटलीस्ट यहाँ से तो आपको मिलेगा, या एटलीस्ट वहाँ से आपको वो लोग कम से कम रीच आउट करेंगे कम से कम, या फिर मैसेज का रिप्लाई देंगे? तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट इंटर्नशिप है, मतलब फर्स्ट टाइम ढूंढने जा रहे हो, तो इंटर्नशाला इज गुड। इंटर्नशाला पे लोग चांस दे देते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि इसको कुछ आता नहीं है। मतलब बहुत लोग वहाँ पे ऑब्वियसली अनपेड दे रहे हैं, बट कुछ लोग दे देते हैं वहाँ पे पेड में चांस। एंड वो मोस्टली वैसी कंपनीज होती है कि वो किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं एंड आप उनके लिए ऐप बना रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, एजेंसी टाइप्स। तो मोस्टली फर्स्ट इंटर्नशिप मेरे हिसाब से लोग ही वही होती है जो ऑफ कैंपस कर रहे हैं। मतलब जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वही लोग शायद ऑफ कैंपस में फर्स्ट इंटर्नशिप प्रोडक्ट बेस्ड में करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया एंड वो सब कंपनीज हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। एंड वरना तो इंटर्नशाला है मेरे हिसाब से एक सही सोर्स।
लिंक्डइन पे भी आप रीच आउट कर सकते हो, बट लिंक्डइन पे ना आपको ढूंढना पड़ता है बहुत बैठ के कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो जीरो एक्सपीरियंस और सेकेंड ईयर में हो। मैं सेकेंड ईयर वाले के लिए बता रहा हूँ, थर्ड ईयर के लिए समर इंटर्नशिप में तो आप ढूंढ सकते, थर्ड ईयर का तो ओपनिंग्स भी आती रहती है, वेबसाइट पे आती है, आप रेफरल मांग सकते हो, है ना। तो वो तो बहुत हो जाता है, बट उसके भी पहले देखने तो लिंक्डइन पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप कंपनी ढूंढनी पड़ेगी ज़्यादा कि ऐसी कौन सी है जो 2 महीने के लिए मुझे कुछ करने दे दे, 3 महीने के लिए कुछ करने दे दे। एंड एक बार आपको फर्स्ट कुछ मिल जाता है ना, एक बार आपके ऊपर लग जाता है कि आज ने कुछ कर रखा ऑलरेडी, उसके बाद थिंग्स गेट ईजियर, बिकॉज आपके पास दिखाने के लिए होता है कि हाँ मैं कर चुका हूँ। उसके बाद फिर आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। ट्विटर भी बहुत अच्छा है, मतलब रीच आउट करने के लिए, मतलब इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हो। एंड इंटर्नशाला तो फिर आप नहीं करोगे, आप खुद इंटर्नशाला पे नहीं जाओगे, एक बार आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप हो जाएगी तो आप नहीं जाओगे इंटर्नशाला पे। आप बोलेगे ठीक है इधर बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, अब मैं तो नहीं जा रहा यहाँ पे। तो या कोल्ड ईमेलिंग वगैरह वर्क्स, बट उसके लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जमा करने पड़ते हैं, मतलब नेटवर्क बनाना पड़ता है। हाँ, ऐसे नहीं किसी भी ईमेल पे भेज दिया, मालूम पड़ा वो आपके स्पैम में जा रहा है, उसका आप कितना भी भेजते रहो उसको। तो उसके लिए आपको पहले एक रिलेशन बनाना पड़ता है उस इंसान के साथ, रेफरल मांगने के पहले भी, वो भी लिंक्डइन पे ही होता है या ट्विटर पे होता है। तो यार थोड़ा मेहनत हाथ पैर मारना पड़ता है, आपका कैंपस के लिए ऐसे तो नहीं मिलता। या गुड आई मीन नॉर्मली यार, पहला आपको एक चीज़ इतने से एक चीज़ जो भी फिल्टर होकर निकला है वो ये है कि फर्स्ट आपको कहीं से भी एक बार मिल जाए, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बाद बाकी सब इजी हो जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू इजी हो जाता है, इतना भी इजी नहीं बट एज कम्पेयर टू इजी हो जाता है, तो वो ग्रेट है। एंड बट द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको मतलब क्या होता है, मतलब जब आपको जो आप पहले वाला तो आपको मिल गया इंटर्नशिप, बस जब फाइनल ईयर में आपको चलो आपको पीपीओ मिल चुका है, जिनको नहीं मिलता, ठीक है, मतलब वो एक पैनिक टाइप का होता है ना। आप में से कोई दोस्त ऐसा भी होगा जिसका शायद हुआ नहीं है फर्स्ट ईयर में, ऊपर से अभी जो रिसेशन का सीन चल रहा है, तो इसमें क्या कहना है, जो भी 23 बैच या फिर 24 बैच है? वो तो अनलकी बैच है ये तो मतलब जब जेई में थे तब पैटर्न चेंज हो गया, एंड जब कॉलेज आए तो कोविड आ गया, अभी है तो रिसेशन आ गया, तो ये तो चलते आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मतलब कैसे टैकल करें आपके हिसाब से? टैकल मतलब अगर देखो कुछ नहीं से बेटर है कुछ तो सही मिले, है ना, राइट। तो मेरे हिसाब से तो अगर अब मतलब 23 बैच वाले की अगर है, अगर अब तक भी कुछ नहीं मिला है तो आई डोंट थिंक इट्स लेट। अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, आई थिंक कंपनीज हायर टिल अप्रैल एंड फॉर फ्रेशर्स, राइट। तो अभी भी टाइम है, बट रिसेशन का टाइम है ऑब्वियसली, तो कंपनीज का और वो मिल गया कि हम हायर नहीं कर सकते, रिसेशन है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर 12 की नहीं मिल रही है तो 8 में कर लो, मतलब 8 की नहीं मिल रही है तो 6 में कर लो, 6 में तो 4, मतलब एटलीस्ट घुस जाओ। हाँ घुस जाओ, एक बार आप एक अंदर घुसना होता है बेसिकली, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप अपना स्किल डेवलप करोगे, आपको पता चलेगा ऐसे काम होता है, और आप फिर स्विच मारते रहोगे। मेन है कि आप बस एक बार कहीं से तो घुस जाओ। जैसे अगर आपकी नहीं लगी है बट आपके दोस्तों की लगी है, तो उनसे रेफरल मांगो, बोलो कि भाई कुछ दे मेरे को लाके, या जहाँ तू पहले इंटर्नशिप करता था वहाँ का नंबर दे, मैं वहाँ पे ट्राई मारूंगा, राइट। तो ऐसे है, मेरे भी दोस्त है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं लगी है, बट जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी या मैंने फ्रीलांस जहाँ से किया था, मैंने उनका कॉन्टैक्ट दे दिया, वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ मिलना बेटर है कुछ नहीं मिलने से। तो ऐसा मत रोको कि हम तो जाएंगे 30 लाख वाले में या 20 लाख वाले में, तो क्योंकि अभी तो शायद उसके लेट हो गया, बट जो मिल रहा है उसको अभी तो ले लो। 23 बैच 24 को तो बहुत टाइम है, ऑब्वियसली पूरा 1 साल पड़ा है। यही है कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही, बेसिकली यही है एंड में। सो द लास्ट क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लास्ट क्वेश्चन कहते कहते बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। जब फ्रीलांसिंग जर्नी में आपको मतलब क्या है, मतलब काफ़ी सारा लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, यूर फ्रेशर्स, राइट, फ्रीलांसिंग एक ऐसा चीज़ है, आपको ऑल ओवर द नॉलेज होता है, आपको क्लाइंट संभालना होता है। क्लाइंट से मैंने पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को अप्रोच करना होता है कि प्रोजेक्ट लेना है, देन आपको हर एक चीज़, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में या फिर ऐप डेवलपमेंट ही पकड़ लो, आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ संभालना होता है। आपके ग्रुप में है, चलो कोई बैक एंड में है, कोई डिजाइन में है, ठीक है, कोई डेटाबेस में है, ठीक है,
लेकिन अगर सब जब खुद को मेंटेन करना होता है स्टार्टिंग में, तो आप सब कुछ नहीं आता है ना आपको। हो सकता है काफ़ी उनमें से इवन कई साल बाद भी ऐसा होता है कि शायद कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो पूरा एक साइट संभाल सकते हैं। मतलब मैं फ्रंट एंड भी संभाल लूँगा, मैं डिजाइन भी संभाल लूँगा, सब कुछ, क्योंकि फ्रीलांसिंग इसी को ही मेनली कहा जाता है। तो इसमें क्या कहना है कि फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग करियर में करना चाहिए? अगर करना भी चाहिए तो कैसे शुरुआत करें? मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप पहले ही फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बिकॉज फ्रीलांसिंग में जो सामने वाला है आपसे बहुत मतलब एक वर्किंग प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता है कि कुछ खराब, यू आर टोटली रेडी ऑब्वियसली। हाँ, आपका सब अच्छा चलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये वो क्लाइंट के तो बहुत होता है, सबको पता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप पहले ही उसमें घुस जाओगे ना तो आप बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे। आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये सब इतना दे रहा है, इतने पैसे के लिए इतना सब करना पड़ रहा है, इतने से पैसे के लिए ये कौन करेगा बैठ के। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप पहले ही फ्रीलांस, क्योंकि मैंने भी ऐसे फ्रीलांस में ढूंढने नहीं गया था, मैंने फ्रीलांस अब तक एक बार नहीं ढूंढने गया हूँ मैं। मैंने अपवर्क पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी कुछ एक दो तीन महीने पहले, लेकिन जब मैं हैकाथॉन्स कर रहा था, राइट, एंड हैकाथॉन्स में जैसे मैंने बोला कि वी वन अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, तो मेरे प्रोजेक्ट्स वेबसाइट डेवफोलियो पे मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे लोगों ने देख के मतलब दे रीच आउट टू मी कि एक है या बना दोगे कैसा वैसा, तो इसके थ्रू आई गॉट इनटू फ्रीलांसिंग। एंड तो मैंने ऐसा खुद से रीच आउट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता था कि जब तब एक साल पहले कि नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उनको पूरा प्रोडक्ट स्क्रैच से बना के देना है, एट द स्क्रीन एंड सब सही से चलना चाहिए, तो इसलिए मैं तो नहीं रीच आउट किया। बट अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, आप कर सकते हो। बट एज अ बिगनर मैंने रिकमेंड करूँगा कि आप सीधा फ्रीलांसिंग में घुसो, मेरा ये ओपिनियन है। मतलब गुड गुड गुड। आई मीन ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग का जैसे आपको पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन अगर हो गया तो इट्स ओके, नहीं तो ये मतलब एकदम बेवकूफ़ी होगी स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग कर दें, क्योंकि तब स्टार्टिंग तो आप, हाँ, मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट से कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कहीं ओपन सोर्स कर रखा है, या क्योंकि ओपन सोर्स का कोड क्वालिटी भी अच्छा होता है बेसिकली, कि आपको आता है, अगर आप बहुत अच्छे से आता है तो आप ओपन सोर्स करते हो एंड आपके कमिट्स मर्ज होते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आप मे बी फ्रीलांस कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द टेक्निकल नॉलेज टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स। बट ऐसे ही कि मतलब 2 प्रोजेक्ट बना लिए, एक क्रड ऐप बना लिया, एक वेदर ऐप बना लिया, एक टूडो ऐप बना लिया, अब जाके मैं क्लाइंट्स के लिए ऐप बना रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि एक देख के या फिर किसी का कोड पढ़ के उसे बनाना एक बात अलग होता है, और किसी प्रोडक्शन लेवल कोई भी प्रोजेक्ट बनाना वो अलग बात होती है। सो ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग तभी करो कि जबकि एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी कंपनी के लिए आपने काम किया है, पूरा संभाला है, देन यू कैन गो फॉर इट। स्टार्टिंग में मत स्टार्ट करो। बिल्कुल। सो या गुड। एंड द आखिरी क्वेश्चन इज कि आपको मतलब द ऑब्वियसली हर किसी का एक ही ये सपना होता है एट द एंड कि आपको अर्निंग्स, तो आपने अभी जो करेंटली जो आई थिंक डिस्क्लोज किया जाएगा कि नहीं पता नहीं, बट इफ़ यू वांट टू शेयर कि व्हाट इज़ द अर्निंग्स नाउ एंड व्हाट आर द आपको जो पीपीओ मिला है उसका भी क्या, अगर एग्जैक्ट नहीं भी बता सकते तो आसपास। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अर्निंग्स और पीपीओ अलग अलग है क्या, मतलब कि अर्निंग्स कितना या पीपीओ कितना, मतलब अर्निंग्स कितना, मतलब एज ए इंटर्नशिप अर्निंग्स क्या हो रहा है या फिर फ्रीलांसिंग अर्निंग्स क्या हो रहा है, दोनों को अगर अलग अलग बोलना चाहोगे, एंड पीपीओ का क्या है कैसे, मतलब पीपीओ तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हाँ ऑब्वियसली साइन कर रखी है, हाँ हाँ एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। एंड अगर इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस और हैकाथॉन्स का बता दूं कि अब तक कितना अर्न किया है, तो इतना अर्न कर लिया कि मतलब 4 सेमेस्टर की फीस तो मैंने खुद से भर दी, 3rd 4th ईयर की पूरी, एंड उसके बाद भी थोड़ा रह गया तो हो गई, मतलब उससे तो अच्छी खासी अर्निंग हो गई मेरी। जैसा मैंने बोला था, मैंने बस एक 500 रुपये का कोर्स खरीदा था और उससे मैंने ये सब कर लिया। ग्रेट, तो हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। एंड पीपीओ का तो एनडीए साइन कर रखी है तो वो नहीं हो सकता, बट है वो भी अच्छी खासी है। मतलब क्या वो 6 फिगर आ जाएगा महीने के? 6 तो आराम से आ जाएगा। ओके ग्रेट ग्रेट। सो यार ऑब्वियसली यार, एंड करेंटली जो सिचुएशन है, चलो आपको मिल गया, लेकिन जो अभी का जो सबसे बड़ा टेंशन वाली बात है वही है कि कैसे क्या मिले। मतलब चलो नेक्स्ट ईयर के लिए तो शायद कुछ ऑब्वियसली शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा, लेकिन अभी का वही सीन है कि जो भी मिल रहा है वही घुस जाओ। ले लो
घुस जाओ मत, एक बार अंदर आ जाओ ना, कुछ तो करो, खाली बैठने से तो बेटर है बहुत कि हम कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट, राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच आयुष फॉर योर टाइम एंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब आपसे भी एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू।